तो मैं आज आपको वो सारी टेक्निकलिटीज समझाऊंगा, सो प्लीज पे वेरी क्लोज अटेंशन। बेटा आप थेराप्यूटिक्स पढ़ रहे हैं, फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। व्हाट आर आवर गोल्स ऑफ थेराप्यूटिक्स? वी हैव ओनली वन goal, is that whatever drug we are giving to any patient suffering from any disease, we want to achieve the desired beneficial effect in that patient with minimal adverse effects. This is our primary goal. There is not even a single medicine which has no adverse effect. हर ड्रग का okay, so there is there is not even a single drug which is void of adverse effects. But we cannot cancel or we cannot delete the adverse effects of any drug. But yes, we can opt a strategy by which we can minimize the adverse effects. That is our principal goal of therapeutics. अब हमारे पास बच्चों दो चीजें होती हैं, एक होती है फार्माकोकाइनेटिक्स और एक होती है डायनामिक्स। तो आज हम पढ़ रहे हैं सिर्फ क्या, फार्माकोकाइनेटिक्स। But what is dynamics? Dynamics is the study which governs the concentration effect part of the drug. जब भी हम ड्रग लेते हैं बेटा, जिस मर्जी रूट से उसको हम एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी के अंदर, अल्टीमेटली इट रीचेस द ब्लड सर्कुलेशन एंड फ्रॉम द ब्लड सर्कुलेशन इट रीचेस टू द एवरी कॉर्नर ऑफ द बॉडी so that it may produce effects. All the phenomena which are related with the uh, all the phenomena which are related uh, uh, before the drug is reached till its receptor site, they are included in the pharmacokinetics. So we will study the pharmacokinetics parameters one by one. We have पढ़ चुके हैं what is kinetics, what is pharmacokinetics. It is just a repetition. All the phenomena of the body which are affecting the drug, they are labeled as pharmacokinetics. So we will be discussing absorption of drugs, distribution of drugs, metabolism and elimination. So all these four principal phenomena, they constitute the pharmacokinetics. So अब हम जो भी ड्रग यूज करते हैं किसी भी पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, हम सिर्फ ये नहीं चाहते कि ड्रग रैपिडली अब्जॉर्ब हो, हम ये भी नहीं चाहते कि ड्रग सिर्फ रैपिडली डिस्ट्रीब्यूट हो। इन पैरेलल हम ये भी चाहते हैं कि ड्रग्स मेटाबोलाइज हो इफेक्टिवली और इफेक्टिव वे में अपने प्रॉपर टाइम पे बॉडी से एलिमिनेट भी हो जाए। तो सिर्फ एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन भी बेटा उतना ही इंपॉर्टेंट जितने पहले दो पैरामीटर्स हैं। रूटीन में हमेशा ये समझा जाता है कि जी हम ड्रग का हमारा पर्पस ये होता है कि ड्रग को हम ब्लड में पहुंचा दें, आफ्टर दैट इफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। स्टोरी बेटा यहाँ पे एंड अप नहीं होती, स्टोरी एंड होती है आफ्टर द कंप्लीट रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी। So all these parameters, they are equally important. So today we have to discuss the absorption of drugs. हम परमिएशन ऑफ ड्रग्स के अंदर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं व्हाट आर द प्रिंसिपल प्रोसेसेस व्हिच आर इन्वॉल्वड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्लड। उसमें हमने पढ़ा था कि दो होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव क्या क्या हमने फिर फर्दर 3 सब टाइप्स बताई थी, एक्टिव की 2 सब टाइप्स बताई थी। ये आप लोगों को पता है पहले से, आप पढ़ के आए फिजियोलॉजी में भी। So today we have to discuss what are the different factors which affect the absorption. There are not many, but few which affect the absorption of drugs. They are very important. The first and foremost factor is the route of administration. So depending upon the choice of route of administration, the absorption is affected. For example, we are giving one medicine by oral route and we are giving the same medicine via intravenous route. So there is a lot of difference in the absorption of the different routes. For example, in second scenario, we are applying the drug on the skin, whereas we are giving the same drug via intramuscular injection. तो obviously बात है, दोनों रूट्स के अंदर बहुत डिफरेंस है और इस डिफरेंस की बेसिस के ऊपर ड्रग की एब्जॉर्प्शन अफेक्ट होती है, ठीक है। The route of administration is the primary factor which is affecting the absorption of drugs in any patient. So you have to carefully choose the route whenever you are prescribing the drug to a patient. Why? Because it depends upon the need of the patient that what route should be opted. हमारे पास हर drug multiple
डोजेज फॉर्म में अवेलेबल होती है। सेम ड्रग हमारे पास आईवी भी होती है, ओरल भी होती है और टॉपिकल भी होती है, और भी बहुत सी फॉर्म्स होती हैं। सो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्राइमरली एंड प्रिंसिपली affects the absorption of drugs. Then we have physiochemical properties of drugs, extremely very important after the routes of administration. So this factor, the the properties of drugs, it also affects the absorption. Why? Because let me explain with the help of an example. regarding regarding the physical properties, some drugs they are large in molecules, some drugs they are very small in molecules. The smaller drugs they will easily cross the lipid membranes as compared to the larger molecules. Larger molecules they cannot cross the membranes, they enter into the cell by the process of endocytosis. So it will take time for the endocytosis of drug to reach inside of the cell, and once inside, then that drug will be expelled with the process of exocytosis. So it takes a lot of time. The physical property of drug, that is the size of the drug, the shape of the drug, it directly affects the absorption. Uh, Smaller molecules with less molecular weight, they easily cross the membranes as compared to the larger molecules with the larger weight. Again, the factor affecting the absorption. The chemical properties of drug, whether that drug is weak acid or weak base, whether that drug is ionized in its ionized state or non-ionized state. So this chemical property of drug, we had discussed it in very much detail in our previous lecture when we will discussing the introduction to pharmacology. So the chemical properties, whether the drug is charged or uncharged, acidic or basic, and in which medium we are administering the drug, it directly affects the absorption of the drug. So these are basically two factors: physical properties of drugs and chemical properties of drugs. The next factor which affects the absorption is the blood flow. Higher the blood flow, higher the absorption of drug from the particular area. Simple formula. And lesser the blood flow, the lesser the absorption. For example, the blood flow is less in the subcutaneous tissue, whereas blood flow is higher in the muscles. ठीक है बेटा, अब मसल में आप आई इंजेक्शन से कोई ड्रग इंजेक्ट करते हैं तो बेटा उसकी एब्जॉर्प्शन रैपिड होगी एज कंपेयर टू द ड्रग which you are administering in the subcutaneous tissue. So you have to choose the site of administration. ये भी आपने माइंड में रखना है कि जिस साइट पे एडमिनिस्टर कर रहे हैं वहां पे ब्लड फ्लो का स्टेटस क्या होता है. Then obviously the drug concentration. If the drug concentration is high, then the more and more blood will be if the drug concentration is high, then more and more drug will be absorbed from site of administration, and if the drug concentration is low, then less absorption and slow absorption will occur from the site of administration. What is effective drug concentration? Effective drug concentration is the concentration of drug at the receptor. अल्टीमेटली बेटा हमें किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं होता, हमें जिस चीज का इफेक्ट होता है दैट इज हाउ मच अमाउंट ऑफ ड्रग इट रीच्ड एट द रिसेप्टर साइट. आपने जितनी मर्जी ड्रग दी, वो कम एब्जॉर्ब हुई, ज्यादा एब्जॉर्ब हुई, रास्ते में वो मेटाबोलाइज हुई ड्यू टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म और फर्स्ट पास इफेक्ट, ब्लड में जाके वो प्रोटीन से बाइंड कर गई, उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हाई था, लो था, नथिंग मैटर्स टू अस. The thing which matters to the physician or clinician is that whatever drug I am giving, how much amount of that drug ultimately reaches the receptor site. Because बेटा जो ड्रग रिसेप्टर पे पहुंचती है वही तो ड्रग होती है जिसने इफेक्ट प्रोड्यूस करना होता है. So that drug is called the effective drug concentration, and effective drug concentration is very much important in many aspects we will be discussing in the coming slides. But before that, I want to ask, there are three terminologies. बेटा ये जो कॉन्सेप्ट अभी हम डिस्कस करने लगे हैं ना, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये बेटा बहुत ही ट्रिकी है और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज अटेंटिव होकर सुनिएगा इसको. इसके बाद हम एक एमसीक्यू भी अटेम्प्ट करेंगे इससे रिलेटेड. बेटा तीन टर्मिनोलॉजीज हैं. वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग. अब तक हम बात कर रहे थे एब्जॉर्प्शन की, कि ड्रग एब्जॉर्ब होके चलेगी ब्लड के अंदर. ठीक है, सारे फैक्टर्स डिस्कस कर लिए हमने कि कौन कौन से फैक्टर्स एब्जॉर्प्शन को डिस्टर्ब कर सकते हैं. बेटा अब बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन की.
ठीक है, खाना पक के अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो हमने गेस्ट को खिलाना है, कैसे खिलाएं जब सारे गेस्ट को। बट डिस्ट्रीब्यूशन से पहले हम बात करेंगे कि हमारे पास ना 3 टर्मिनोलॉजीज है व्हिच आर वेरी कंफ्यूजिंग एज फार एज द डिस्ट्रीब्यूशन इज कंसर्न्ड। फर्स्ट इज बेटा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, द सेकंड टर्म इज ड्रग रीडिस्ट्रीब्यूशन, द थर्ड टर्मिनोलॉजी इज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आप में से कोई बच्चा अपनी कॉमन सेंस से मुझे बता सकता है व्हाट कुड बी द difference between these three terminologies? You can unmute your mic and you can participate in the discussion. What are the differences between drug distribution, drug redistribution and volume of distribution? कोई बच्चा, कोई जीनियस जी आपकी क्लास में, कॉमन सेंस जिसकी बहुत अच्छी हो? और बेटा सारे ही वीक हो मेरी तरह, किसी की कॉमन सेंस काम नहीं कर रही अभी। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कोई जाग भी रहे हो कि नहीं? ये सारे सो रहे, चले कोई बात नहीं, मैं किसी से पूछ लेता हूँ। ये बैठी है जी हमारे पास ईशा फातिमा, रोल नंबर 10। जी बेटा, कुछ तो बताओ इसके बारे में जो मैं बता रहा हूँ आपको। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा, बोलो। वालेकुम सर। जी बेटा बोलो, सुन रहा हूँ। सॉरी सर, मुझे तो सारे एक जैसे लग रहे। अच्छा चलें कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ जी। देखें जी, एब्जॉर्प्शन हुई ड्रग की, एब्जॉर्प्शन के बाद ड्रग पहुंची ब्लड के अंदर। अब ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, हर कॉर्नर पे जाता है, तो अपने साथ वो ड्रग्स को भी ले जाता है। तो दिस इज सिंपली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। इट इज द प्रोसेस ड्यूरिंग विच ब्लड इट डिस्ट्रीब्यूट्स द ड्रग टू द होल टिश्यूज ऑफ द बॉडी। सिंपल इज दैट, कंफ्यूज नहीं करना। अब है बेटा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स। बेटा जब इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ फिर आपको सही समझ आएगी। जब हम छोटे थे तो हम अच्छा बेटा, जब हम छोटे थे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, चलो स्टोरी सुन लो यार। आई डोंट नो कि अब ये स्टोरी एप्लीकेबल है कि नहीं, लेकिन जब हम छोटे थे बेटा तब तो ये स्टोरी बड़ी एप्लीकेबल थी। बेटा जब हम छोटे थे तो अबू जब भी कहीं मतलब जाते थे वापस आते थे। माय फादर इज अ फार्मर, तो वो फार्म हाउस पे जाते थे, तो जब वो 2 दिन 3 दिन बाद वापस आते थे तो हमारे लिए काफी चीजें ले आते थे। हर बच्चे की पसंद की ज्यादातर चीजें लेके आते थे, लेकिन यू नो ना कि बच्चे को अपनी पसंद से ज्यादा दूसरे की चीज में इंटरेस्ट होता है। तो अबू जब आते थे तो हम सब की जो हम माशाल्लाह 6 बहन भाई थे, अभी भी हैं, मतलब थे नहीं, तो हम सबकी कोशिश होती थी कि सबकी चीजें समेट लें। तो एक मतलब एक, मैं क्या कहूँ आपके, बड़ी एक्टिव सी फेज जनरेट होती थी जिसमें हर बंदा, अब जिसके पास जितनी पावर ज्यादा होती थी, जो मेरे बड़े बहन भाई थे तो वो ज्यादा चीजें समेट लेते थे, जो छोटे थे हम बेचारे आराम से बैठे रहते थे। तो लेकिन जब ये सारी जंग खत्म हो जाती थी तो फिर बड़ों को एहसास होता था कि नहीं यार ये ज्यादती हो गई, मेरे पास चीजें बहुत ज्यादा है। तो फिर वो हमें चीजें वापस कर देते थे। ठीक है, कुछ वैसी वापस कर देते थे, कुछ अम्मी अबू के डांडे में वापस कर देते थे। तो इसमें मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बेटा समझाना चाह रहा हूँ कि पहले जो चीजें हमारे घर में आती थी वो डिस्ट्रीब्यूट होती थी। जिसके पास जितनी पावर होती थी वो उतना ही माल इकट्ठा कर लेता था, और जो मेरी तरह का वीक छोटा होता था वो ऐसे ही मुंह उठा के बैठा होता था कि मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। बेटा इसी तरह ड्रग्स के बारे में है कि जब ब्लड में तो ड्रग चलेगी, एब्जॉर्प्शन हो गई, ये स्टोरी तो एंड होगी। अब ब्लड ने पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना है। जब वो ब्लड सर्कुलेट करता है, जिस ऑर्गन की ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होती है वो ज्यादा ड्रग को उठा लेता है। फॉर एग्जाम्पल थायराइड ग्लैंड, your brain tissue, your kidneys, they have very rich blood supply. So the organs which have very rich blood supply, they take up the large amount of drug from the circulation during the distribution phase of drug. अब उठा तो वो लेते हैं, लेकिन एक रूल है हमारा, लॉ ऑफ नेचर है, लॉ ऑफ मास एक्शन है, दैट द molecules or the substances they will move from the area of high concentration to the area of low concentration. अब ब्रेन साहब ने ड्रग तो उठा ली है,
लेकिन जब इक्विलिब्रियम की फेज जनरेट होती है तो ब्रेन को ड्रग को फिर रिलीज करना पड़ता है। व्हाई? बिकॉज एरिया हाई टू एरिया लो कंसंट्रेशन ड्रग ने जाना होता है। तो ब्रेन जब ड्रग रिलीज करता है तो फिर वो ड्रग दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट होती है। सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स। मैं इसको समराइज करता हूँ। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स इज द फिनोमेना और द फेज ड्यूरिंग व्हिच द ऑर्गन्स with high blood supply they take up the large amount of drug initially, but ultimately they release the drug into general blood circulation after some time, and the released drug, it is once again redistributed in the whole body, and this whole process, it is labeled as redistribution of drugs. Never ever confuse it with the distribution of drugs. वो पहली फेज थी, उसमें जिसने जो करना था अपनी पावर से कर दिया। अब बेटा तीसरी चीज होती है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये आपको बेटा आज समझ आ गया ना, यकीन करें मैं बड़ा खुश हूँ कि आप बड़े अच्छे बच्चे हो। बेटा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, यहाँ वॉल्यूम से आपने, वॉल्यूम तो ऑब्वियसली बात है लिक्विड्स का ही होता है। आई टोटली एग्री विद दैट। जैसे ब्लड हो गया हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो गया, या बॉडी में और बहुत सारे फ्लूइड होते हैं हमारे पास। इस वॉल्यूम से मतलब तो वही चीज है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स इनटू डिफरेंट फ्लूइड्स ऑफ द बॉडी। बट for the sake of understanding the concept of volume of distribution, आप इस वॉल्यूम का मतलब यहाँ पे लें बेटा स्पेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ। That volume of distribution can be defined as the ability of drug to reach into different spaces of the body. अब एक ड्रग है, अल्टीमेटली जब ब्लड में चली जाती है उसके बाद वो ब्लड में ही रहती है, वो ब्लड से बाहर नहीं जाती, किसी ऑर्गन में नहीं जाती, किसी टिश्यू में नहीं जाती। तो हम कहते हैं कि यार ये तो बड़ी बेकार ड्रग है, ये ब्लड के अंदर ही जाके बैठ गई है। अब क्यों बैठ गई है, उसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं कि ड्रग का साइज बहुत बड़ा है, हमने डायरेक्ट इंजेक्शन लगा दिया, बहुत बड़ा साइज है, वो कैपिलरीज को क्रॉस नहीं कर पा रही, या कुछ ड्रग ऐसी होती है बेटा जिनकी प्रोटीन बाइंडिंग बहुत हाई होती है, ब्लड में जाने के बाद डायरेक्टली वो एल्बुमिन से बाइंड कर लेते हैं, एल्बुमिन से बाइंड करने के बाद स्ट्रक्चर और बड़ा हो जाता है, दे कैन नॉट लीव द स्मॉल टाइनी कैपिलरीज। But whatsoever is the reason, if the drug it is staying inside the blood, then we will say that this is not a good drug and it has very less volume of distribution, क्योंकि ये बॉडी के अंदर बहुत कम स्पेस के अंदर पड़ी हुई है, पूरी बॉडी में नहीं पड़ी हुई। अब पूरी बॉडी को बेटा एक कंपार्टमेंट मान लेना, उस कंपार्टमेंट के अंदर अगर एक कोने में ड्रग पड़ी हुई है तो वो अच्छी ड्रग तो ना हुई। हम चाहते हैं कि ड्रग पूरे कंपार्टमेंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। दिस इज आवर गोल in majority of cases, but this goal may differ in certain special conditions. We will keep on discussing. So first of all, let's define the volume of distribution systematically. मैं रीड करूं, लिखा हुआ है volume of distribution, it relates to the amount of drug in the body to its concentration in the plasma. हम ये रेशियो लेते हैं फिर just to compare कि कि वो जो ड्रग है हमारे पास, जैसे आप पास और फेल होते हैं कि टोटल मार्क्स में से आपने कितने मार्क्स अचीव किए, इसमें भी हम ऐसे करते हैं कि पूरी बॉडी में कितनी ड्रग है और ब्लड के अंदर कितनी है। इस जो रेशियो से हमें जो फिर हमें एक रिजल्ट मिलता है, उससे हम फिर कहते हैं कि इस ड्रग का वॉल्यूम हाई है या लो है। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशन। एक सेकंड रुक जाए, ये वाली बेटा प्लीज फोकस एट दिस इलस्ट्रेशन, फॉलो माय पॉइंटर प्लीज। आप टॉप पे देख सकते हैं बेटा, राइट पे हमारे पास भी एक ग्रीन कंपार्टमेंट है और लेफ्ट पे हमारे पास फर्स्ट डायग्राम में जी हमारे पास एक पिंक कंपार्टमेंट है। दिस पिंक कंपार्टमेंट इट इज द this pink compartment, this is the blood compartment, arteries and veins, and this green compartment it is the rest of the whole body, सारी बॉडी है बाकी। आप ये भी देख सकते हैं कि जो फुल बॉडी है वो एक काफी मैसिव कंपार्टमेंट है, बड़ा कंपार्टमेंट है, जबकि जो हमारे पास वेस्कुलर कंपार्टमेंट है वो काफी छोटा कंपार्टमेंट है। अब हम इससे कंपैरिजन करेंगे इन तीनों डायग्राम्स के अंदर कि बेस्ड अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स इन वेरियस कंडीशन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब फर्स्ट डायग्राम में आते हैं बेटा, हमारे पास 20 यूनिट्स थे ड्रग के, 20। हमने जब वो ड्रग पेशेंट को दी, अल्टीमेटली आफ्टर सम टाइम 2 units they remained in the blood, whereas 18 units they crossed the vascular compartment and they went into the whole body. तो आप कह सकते हैं कि जी 18 यूनिट पूरी बॉडी में, जो कि बड़ा कंपार्टमेंट है, और सिर्फ 2 यूनिट हमारे पास कहाँ पे बेटा ब्लड सर्कुलेशन में है।
अपेरेंटली लग रहा है कि यार ये बहुत ही अच्छी ड्रग है, कि ये बहुत अच्छी तरह से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हुई है, सिर्फ ब्लड में नहीं रही, ब्लड में थोड़ी सी रही है, बाकी सारी डिस्ट्रीब्यूट होगी इनटू डिफरेंट स्पेसेस ऑफ द बॉडी। अब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये फार्मूला है जी, अमाउंट ऑफ ड्रग इन टोटल बॉडी, टोटल हमने 20 यूनिट दिए थे बेटा, अब ब्लड के अंदर सिर्फ इस वक्त 2 रह गए हैं, तो 20/2 इज इक्वल टू 10 लीटर्स। We are very happy that this is a good drug. Why? Because this drug has volume of distribution which is 10, which is very good figure. ठीक है, जिस ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 1 होता है ना, तो उसका मतलब होता है कि 50% ड्रग इज इन द ब्लड, सॉरी, जिसका 1 होता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, उसका बेटा मतलब होता है कि होल द ड्रग इज इन द ब्लड। फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ ड्रग इन द ब्लड। तो जितने ड्रग बॉडी में है, मतलब जितनी ड्रग हमने दी है वो टोटल 20 दी है पूरी बॉडी के लिए, ठीक है, लेकिन जो ब्लड के अंदर है वो भी उतनी ही है जितनी बॉडी में है टोटल, तो इसका मतलब है सारी की सारी ड्रग हमारी ब्लड के अंदर है, तो वो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 1 होगा, जो कि बहुत कम है। अब इसका 10 है, इसका मतलब है ये अच्छी ड्रग है, ब्लड में कम रही है, पूरी बॉडी में ज्यादा गई है, तो वी विल से दैट दिस ड्रग हैज वेरी हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट बेटा सेकंड डायग्राम पे आ जाओ। हमने बेटा एक सेकंड ड्रग दी, ड्रग बी है उसका नाम, फर्स्ट ड्रग का नाम ड्रग ए था, सेकंड ड्रग का नाम ड्रग बी है। आप देख सकते हैं बेटा कि हमने 20 यूनिट्स दिए, सेम यूनिट्स, 20 में से बेटा 18 यूनिट्स ब्लड के अंदर रहे। ये बी के साथ जो बेटा ये जिगजैग सी लाइन बनी है, दिस इज द प्रोटीन, तो ड्रग बी इज अटैच्ड विद द प्रोटीन on very strong basis, so that's why this drug B, it is unable to cross the blood compartment and unable to go into the vascular compartment। तो बेटा अब 20 में से आप देख सकते हैं कि 18 यूनिट्स ब्लड में पड़े हुए हैं, सिर्फ 2 यूनिट्स बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं बॉडी के अंदर, तो आप खुद कह सकते हैं कि पूरी बॉडी के अंदर स्पेस खाली पड़ी है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुई, ड्रग एक बड़े ही छोटे से कन्फाइंड एरिया के अंदर फंसी हुई है। अब इसका हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विच इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ ड्रग इन द ब्लड। टोटल हमने 20 यूनिट्स दिए थे, ब्लड में 18 यूनिट्स हैं, विच इज इक्वल टू 1.1। वेरी बैड ड्रग, very bad drug, not an ideal drug. Why? Because it has very less volume of distribution। आप चाहते हैं कि ड्रग आपके ब्रेन में जाके एक्ट करे, आपके हेडेक ठीक करे, लेकिन आपने ड्रग दी ही बेटा ऐसी है जिसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लो है, वो ब्लड को छोड़ेगी ही नहीं, जब ब्लड को छोड़ेगी नहीं तो आपके ब्रेन टिश्यू में कहाँ से पहुंचेगी। इसी तरह बेटा आपके पेट में दर्द है, आपके इंटेस्टाइन में क्रैम्प्स है, आपने स्पैज़मोलिटिक ड्रग दे दी, वो ब्लड को बेटा छोड़ेगी तो ही आपके स्मूथ मसल्स ऑफ इंटेस्टाइन पे जाके उनको रिलैक्स करेगी और आपका पेट का दर्द ठीक होगा। सो ऑलवेज रिमेंबर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट whenever you are prescribing any drug to any patient। Is that clear to everyone? अब नीचे आ जाओ बेटा, अब हमने बेटा 200 यूनिट्स दिए हैं, 200 यूनिट्स ड्रग सी के, ये सी लिखा हुआ है, ठीक है, और ये जिगजैग लाइन जो है बेटा ये क्या है बेटा, ये हमारे पास प्रोटीन्स हैं। अब 200 यूनिट्स में से जब वो ड्रग ब्लड में पहुंची तो सिर्फ ब्लड में 2 रह गए, बाकी 198 यूनिट्स बेटा वो पूरी बॉडी में फैल गए, होल बॉडी के अंदर और इनटू ऑल द स्पेसेस। जैसे उर्दू में कहते हैं ना कि हर कोने खुदरे में पहुंच जाना, हर जगह पहुंच गई वो ड्रग। So again we calculated with the formula total amount of drug in the body which is 200 units divided by amount of drug in the blood जो कि सिर्फ 2 यूनिट्स हैं, and we get 100 liters volume of distribution of this drug। so much high volume of distribution, so much high। जिस ड्रग का volume of distribution बेटा 1 होगा, फॉर एक ड्रग है, बेकार ड्रग है, और जिसका 100 है वो ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा है। अब इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बेटा डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। अब जहां मैं ये कह रहा हूँ कि जिसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हाई होगा वो अच्छी ड्रग है, वो हर बॉडी कॉर्नर में जाएगी, वहीं इस चीज का बेटा नुकसान भी है। इसका डिसएडवांटेज ये है बेटा कि द मोर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन द मोर एरियाज ऑफ बॉडी विल हैव द मोर अमाउंट ऑफ ड्रग and there are more and more chances of production of side effects and adverse effects and toxic effects। तो ये चीज माइंड में रखनी है, सिर्फ ये नहीं कहना कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है बल्ले बल्ले बहुत अच्छी ड्रग है ना, ये भी देखना होता है आपने कौन सी ड्रग दे रहे हैं, किस कॉन्सेंट्रेशन में दे रहे हैं, किस कंडीशन के लिए दे रहे हैं, और हमें क्या आइडियल सिचुएशन चाहिए। तो पैरेलल में चलते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो वी हैव समराइज्ड द कांसेप्ट ऑफ व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स, what is redistribution, and what is volume of distribution। I hope you have no confusion so far। now beta
टेंशन ना लो, लेक्चर बस छोटा सा ही रहे, बस 10 मिनट में मैंने इसको एंड कर देना है, मेरी एक और असाइनमेंट है, बट हमारे पास 10 मिनट हैं अभी। बेटा अब कुछ हम टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे। अब बेटा ड्रग डिस्ट्रीब्यूट तो हो गई, सबसे पहले मैंने क्या कहा था, एब्जॉर्ब होगी, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होगी, उसके बाद मैंने कहा वो अब काम हो गया उसका, अब हम कहते हैं कि जा बेटा अस्सलाम वालेकुम, अब घर जाओ, हमें आपकी नहीं जरूरत। That phenomenon is called drug elimination. But elimination is the English literature terminology. Eliminate से निकला है. Eliminate mean complete removal, not partial. Please, I'm focusing on this point. Elimination mean complete removal of drug. So drug elimination is the complete removal. Systematically, we define it as by the termination of drug action. मैंने इसको रेड में बेटा हाईलाइट किया है. The termination of drug action. Termination of drug action. जो बच्चा ये कहता है कि एलिमिनेशन का मतलब है कि ड्रग का मेटाबॉलिज्म करा दो ना, खाली ये ठीक नहीं है बेटा। ड्रग एलिमिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट रिमूवल, सेकेंडली यू कैन आल्सो से इट इज द टर्मिनेशन ऑफ ड्रग एक्शन which is commonly achieved by excreting the drug from the body or by metabolizing the drug from the body. One of the function of drug metabolism is to make the drug inactive or to make it in a water soluble form so that it may be excreted from the body. So excretion of drug, excretion mean expulsion out of the body, body से बाहर निकाल दो, and metabolism, drug body के अंदर तो हो लेकिन वो metabolize हो जाए and so that it may not produce the effect. तो चाहे आप excrete कराएं ड्रग को, चाहे आप metabolize कराएं, इन दोनों चीजों से आप कर क्या रहे हैं, आप एक्शन ऑफ ड्रग को टर्मिनेट कर रहे हैं so that it may not act now, इसने जो काम करना था कर दिया. This is the definition of drug elimination. Sorry. Now what is drug excretion? मैंने बता दिया आपको, irreversible removal of the drug from the body. बेटा elimination में मैंने बताया था complete removal which we achieve by excretion or metabolism. Excretion is the irreversible removal of the drug from the body by all possible routes. Drug can be excreted in the urine, it can be excreted in the bile, and it may appear in the feces. It can be excreted in the sweat, it can be excreted in the in your expired air, जो हमारे पास volatile gases होती हैं, they excrete from the lungs and they appear in your expired air, जो हमारे सारे anesthetic drugs होती हैं. So there are multiple routes by which drug can be removed from the body. Drug metabolism, the conversion of chemicals from one form to another form in the biological system, it is drug metabolism, and we also label it as biotransformation. तो biotransformation कराएं ड्रग की या आप excrete कराएं, हम इसको constitute करते हैं single terminology of drug elimination. Now what is drug secretion? ये एक और terminology है जो बच्चों को confuse करती है. बेटा इसमें मैं आपको चार चीजें बताऊंगा इस डायग्राम के अंदर. Please follow my pointer. This yellow one structure, this is the नेफ्रॉन बोमेन कैप्सूल, सबको पता है जी, एंड दिस इज द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन. अब बोमेन कैप्सूल के अंदर जो हमारे पास कैपिलरीज का नेट होता है दैट इज लेबल्ड एज ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस का एक एफरेंट आर्टेरियल होता है और उसके बाद एक इफरेंट आर्टेरियल होता है. इस ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से फ्लूइड फिल्टर होके हमारा बोमेन कैप्सूल में आता है, ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड द फिल्ट्रेशन प्रोसेस, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं. आफ्टर द फिल्ट्रेशन, majority of the components from the filtrate they are reabsorbed. This second one, this is the reabsorption of glucose, sodium, potassium, calcium, magnesium, water, and many other substances including the proteins. They are reabsorbed directly from the tubular lumen into the surrounding peritubular capillaries. ये direct absorption हो रही होती है, ठीक है बेटा, आपको पता है फिजियोलॉजी पढ़ा होगा आपने. But this third step, it is very important. This one, this arrow, जैसे बेटा डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन हो रही होती है हमारे ट्यूबुलर ल्यूमन से इनटू द कैपिलरीज, उसी तरह बेटा ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज इन द किडनी, they are actively secreting certain substances directly into the lumen. This active secretion or active transport of certain substances including the drugs, some drugs, this phenomenon it is called as drug secretion. Is that clear beta? And ultimately जो यूरिन बन जाता है it is excreted. So drug secretion is active phenomena, drug excretion is some other phenomena, and drug filtration, drug reabsorption, they are some other phenomena. So 1 2 3 4 in this diagram they are telling us about the filtration process, reabsorption process,
drug secretion and drug excretion. Do not confuse these terminologies. Drug extraction, बेटा ड्रग एक्सट्रैक्शन की मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बताऊं कि मेस में एक लड़का बैठ के खाना खा रहा है और आप जाते जाते उसकी प्लेट में से कोई चीज उठा के ले जाते हो ऐसे ही, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन। कि आप गुजर रहे थे तो आपने हाथ मार के कितनी चीजें वहां से उठा ली एक दूसरे साथी की प्लेट में से, दैट इज ड्रग एक्सट्रैक्शन। कि जब भी ब्लड में ड्रग सर्कुलेट कर रही होती है तो जो पासिंग बाय ऑर्गन्स होते हैं, how much amount of drug they take up, that phenomena is labeled as drug extraction. I hope you got it. Drug disposition, biodisposition, this is a terminology which is used sometime to describe the pharmacokinetics. So we can say that pharmacokinetics and biodisposition, they are almost the same terminology. What is drug clearance? बेटा टाइम कम है, ठीक है। ड्रग क्लियरेंस हम इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे और या नेक्स्ट मीटिंग जब भी होगी हमारी। टिल देन यू एंजॉय इट। अब मैं आपको बेटा 2 MCQ और दे रहा हूँ, वो आपने बेटा अटेम्प्ट करने हैं। डॉक्टर शबीर आप भी आके देख लें। मैं ओके बेटा मैं MCQ शेयर करने लगा हूँ, ठीक है। या जो भी चीज आ रही है आपका क्वेश्चन जो भी आ रही है ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, आई विल गिव ओनली 10 सेकंड्स, आप इसको अटेम्प्ट जरूर करना है, ठीक है बेटा। ले जी, इट इज ऑन योर स्क्रीन नाउ। चलो योर टाइम इज गोइंग टू एंड नाउ। ठीक है सर। ओके अब हम बच्चे आपको बताएंगे कि इसका आंसर जो भी था, मैं आपसे रिजल्ट शेयर कर रहा हूँ इसके। ले जी रिजल्ट आपकी स्क्रीन पे आ गए। आप देख सकते हैं बेटा कि 60 स्टूडेंट्स ने, या आप कह सकते हैं कि 86% ऑफ द पार्टिसिपेंट्स दे आंसर्ड द फर्स्ट ऑप्शन, whereas 10 students they clicked the second option. The right answer is true, मतलब clearance determines the rate of elimination of drugs। हमने पढ़ा नहीं बेटा वैसे, मतलब चले मैंने बनाया हुआ था आपसे पूछ लिया। One more question is coming onto your screen बेटा। I will give you बेटा 15 seconds only, आपने quickly उसको पढ़ना है। No, I will give you 30 seconds, थोड़ा सा बड़ा है ये, so you will have the 30 seconds। अब पढ़ें बेटा इसको। ये देखिए टाइम आ रहा है 21 सेकंड हो गया, या एंड कर दूंगा ये खत्म। You have 5 seconds left only, please click on your respective option। 3 seconds left, 2 seconds left beta। Okay, I'm going to end this MCQ now। I'm sharing the results। अरे बेटा इधर को मैं हाथ जोड़ा तो खौफे खुदा कर लो, अभी मैं खप खप के थक गया हूँ यार। ड्रग एलिमिनेशन इज द टर्मिनेशन ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग। अभी नहीं बताया आप लोगों को? ड्रग एलिमिनेशन, द रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी, द एक्शन टर्मिनेशन ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी। ऑप्शन ए इज करेक्ट, लेकिन मैं हैरान हूँ ऑप्शन बी सी डी ई जिन्होंने क्लिक किया है। इसका मतलब है बेटा कि आप लोग नहीं सुन रहे थे। तो बेटा नेक्स्ट टाइम मैंने ऑप्शन लगा दी, जिसने इस तरह गलत ऑप्शन दिया ना, कि मतलब मैं खप गया यार। ड्रग एलिमिनेशन इज द एक्शन टर्मिनेशन। मैंने क्या बात की थी कि एब्जॉर्प्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूट होगी ड्रग। अब हम चाहते हैं कि ड्रग अपना एक्शन खत्म कर दे, तो मेन टर्मिनोलॉजी इज ड्रग एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन होती है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन एंड मेटाबॉलिज्म।
ये बेटा मैं आपको ये स्लाइड दोबारा दिखा के लेक्चर एंड करते हैं। ये तो बड़ी अच्छी चीजें हैं, मुझे पता चल गया कि आप लोग तो कुछ भी नहीं पढ़ रहे। अच्छा, मैं आपसे रिपोर्ट शेयर करूंगा जिसमें ये भी लिखा होगा कि किस बच्चे ने किस आंसर का क्या किया था। मैं अभी शेयर करूंगा ताकि आपको पता हो कि मुझे ये पता भी चलता है कि किस बच्चे ने क्या क्लिक किया। और बेटा जिसने एलिमिनेशन क्लिक नहीं किया उसको तो मैं अपने हाथ से गोली मारूंगा, ये ध्यान में रखना जब मुझे मौका मिलना है। यानी कि बात करने वाली देखो इतना बड़ा बड़ा लिखा है जी, टर्मिनेशन ऑफ ड्रग एक्शन। नहीं दिखाई आपको ये स्लाइड, टर्मिनेशन ऑफ ड्रग एक्शन, कंप्लीट रिमूवल, टर्मिनेशन ऑफ ड्रग एक्शन। मैं करता हूँ तुम लोगों का इलाज। बट बिफोर साइनिंग ऑफ, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन बेटा यू कैन आस्क मी। आई विल शेयर द रिपोर्ट्स, जरूर करूंगा इंशाल्लाह। सर अच्छा जी क्वेश्चन बेटा, ये जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपने बताया इसके अंदर जो टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन द ब्लड, सर ये ब्लड का मतलब यहाँ प्लाज्मा ही होगा ना, ब्लड जी प्लाज्मा? बेटा वही, जी जी कह सकते हैं, प्लाज्मा भी और कह सकते हैं, ब्लड भी कह सकते हैं। सर स्पेसिफिकली तो हम इसे प्लाज्मा ही कहेंगे ना, क्योंकि कह फिर वो कह रहे हैं बेटा, जो सेल्स आएंगे तो उसमें तो इंट्रासेलुलर कंसीडर होगा वो। ठीक है बेटा। और सर ये आप जो प्लाज्मा यूज बाकी है करें, बॉडी, इसका मतलब फिर यही इंट्रासेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर, सर वो जो एक्स्ट्रा बॉडी है वास्कुलर, बॉडी। सॉरी नॉट एक्स्ट्रा सेलुलर बेटा, एक्स्ट्रा वास्कुलर के वेसल के अलावा, आर्टरी वेयर के अलावा बाकी जहां पड़ी हो, चाहे सेल में पड़ी हो चाहे सेल के बाहर पड़ी हो, एक्स्ट्रा वास्कुलर, यानी प्लाज्मा के अलावा इंटरस्टिशियल कहीं फ्लूइड पड़ी भी हो। कह सकते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड इंट्रासेलुलर भी भी कह कह सकते लें, हैं, सेल्स कह इंटरस्टिशियल लें, भी। जो मर्जी कह लें ठीक आप, हो बस गया पूरी सर, बॉडी हो में गया। कहीं पड़ी हो, बोन में पड़ी हो, बेशक आपकी मसल्स में पड़ी हो, कहीं भी पड़ी हो। ठीक हो गया, थैंक यू सर। वेलकम बेटा, वेरी गुड क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड। एनी अदर हाँ क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन बेटा? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने पढ़ा कि ड्रग एलिमिनेशन का मतलब ये है टर्मिनेशन ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग, मगर सर कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनका एक्शन जो है वो वीक्स और डेज और इवन मंथ्स के लिए होता है। फॉर एग्जांपल हमारे स्टीरॉयड हार्मोन, तो सर वो ब्लड से तो टर्मिनेट हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, मगर उनका एक्शन अभी भी परसिस्ट कर रहा होता है। तो व्हाट अबाउट देयर एलिमिनेशन? बेटा ये मैं कल आपको आंसर दूंगा, इसकी डिस्कशन बड़ी लंबी है। 10 बजे मेरा एक और लेक्चर है, ठीक है? तो क्वेश्चन आपका बेटा लॉक कर लिया मैंने, एंड वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन कि व्हाई द एक्शन ऑफ ड्रग इट परसिस्ट फॉर इवन डेज एंड वीक्स। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आई विल तो फिर डिस्क्राइब इट इन डिटेल इन नेक्स्ट मीटिंग इंशाल्लाह। ओके Okay सर, beta, थैंक thank you so यू। much and thank you for all the patience. If you have any questions you can ask in the next meeting. ठीक है बेटा, टाइम मेरे पास नहीं है, अदरवाइज मैं आपकी आपसे डिस्कशन करता। एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ यू। आज इनसे प्रैक्टिकल भी होगा, मैडम सुमेरा विल टेक द प्रैक्टिस। नहीं है चलें, आज वो लीव पे हैं बेटा, प्रैक्टिकल नहीं होगा आज आपका, चिल मारो एंड अल्लाह हाफिज। कोई बात नहीं, ठीक है।